Hello viewers, this is our second lecture on environment science and engineering, and in this lecture we explain layers of atmosphere. There are 5 concentric layers within the atmosphere. These are number 1 the troposphere, number 2 the stratosphere, number 3 the mesosphere, number 4 the ionosphere and thermosphere, and last one fifth is the एक्सोस्फीयर। जो हमारे वायुमंडल की परतें हैं, वायुमंडल के भीतर 5 संकेंद्रित परतें हैं। ये संख्याएं हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और थर्मोस्फीयर और बाह्य मंडल। So let us explain one by one. Number 1 is the troposphere. This is nearest layer which is very close to Earth's surface. All the living species are lies on it. It extends to a height from 8 km near the poles to 18 kilometers near the equator. With the action of wind, the troposphere is in constant motion. The changes of weather occurs in this layer of atmosphere. The temperature in this sphere is gradually decreases with height at a rate of about 6.5 to 7 degrees centigrade per kilometer. At their upper level, the temperature decreases up to minus 60 degrees centigrade. The water vapor contents in troposphere are from 0 to 4%, which depends upon the altitude and temperature. क्षोभ मंडल यह सबसे नजदीकी परत है जो पृथ्वी के सतह के बहुत करीब है। सभी जीवित प्रजातियां इस पर स्थित हैं। यह ध्रुव के पास 8 किलोमीटर से भूमध्य रेखा के पास 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। हवा की क्रिया के साथ क्षोभ मंडल निरंतर गति में रहता है। वातावरण की इस परत में मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। इस क्षेत्र में तापमान लगभग 6.5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से ऊंचाई के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। इसकी ऊपरी सतह पर तापमान -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% तक होती है, जो ऊंचाई और तापमान पर निर्भर करती है। द सेकंड इज द स्ट्रेटोस्फीयर। द अपर लेयर ऑफ troposphere is stratosphere. The stratosphere is about 62 km thick at the equator and above 72 km at the poles and extend up to 80 km above the surface of the earth. In stratosphere, the temperature rises from a minimum of about -50 degrees centigrade to a maximum of about 5 degrees centigrade, but the temperature is almost constant in vertical direction due to the reason of very low temperature. There are no cloud, dust or water vapors in this zone. The only clouds found in stratosphere are very thin, wispy clouds formed with tiny ice crystals. The stratosphere is rich in ozone, which absorbs harmful ultraviolet radiations which comes from the sun and rise the temperature causing lapse rate. It also reduces the effect of ultraviolet rays which comes from the sun. This ozone layer is also called as ozonosphere within the stratosphere. In the middle region of the stratosphere, ozone may reach up to a level of 10 ppm. क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह समताप मंडल है। समताप मंडल भूमध्य रेखा पर लगभग 62 किलोमीटर मोटा और ध्रुवों पर 72 किलोमीटर मोटा है और पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। समताप मंडल में न्यूनतम तापमान लगभग -50 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, लेकिन तापमान बहुत कम होने के कारण ऊर्ध्वाधर दिशा में लगभग स्थित रहता है। इस जोन में बादल, धूल और जल वाष्प नहीं है। समताप मंडल में पाए जाने वाले एकमात्र बादल छोटे बर्फ के क्रिस्टल से बने हुए पतले बादल होते हैं। समताप मंडल ओजोन में समृद्ध है, जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है, जो सूर्य से आते हैं और तापमान में वृद्धि का कारण बनते हैं। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को भी कम करता है। इस ओजोन परत को समताप मंडल के भीतर ओजोन मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल के मध्य क्षेत्र में ओजोन 10 ppm के स्तर तक पहुंच जाता है। एंड द थर्ड इज द mesosphere. The mesosphere comes after stratosphere, which contains very cold temperature and very low atmospheric pressure. The mesosphere
extends up to 80 km and its temperature drops to about minus 95 degrees centigrade at a level of 80 to 90 km above the earth's surface. This level is called the mesopause. The decrease in temperature is due to low absorption of ultraviolet radiation by ozone. और यह तीसरा है मीजोस्फीयर. मीजोस्फीयर समतापमंडल के बाद आता है, जिसमें बहुत ठंडा तापमान और बहुत कम वायुमंडलीय दबाव होता है. मेजोस्फीयर 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसका तापमान पृथ्वी की सतह से 80 से 90 किलोमीटर के स्तर पर लगभग माइनस 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है. इस स्तर को मेसोपॉज कहा जाता है. तापमान में कमी ओजोन द्वारा पैराबैंगनी विकिरण के कम अवशोषण के कारण होता है. एंड द फोर्थ इज द आयनोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर. Above the mesosphere is the thermosphere, which goes up to 500 km above the Earth's surface. In this region, there is an increase of temperature with height from the mesopause. This layer of atmosphere, that is ionosphere, reflects radio waves back to the Earth's surface and enables us to have wireless communication. Due to this layer, रेडियो मैसेजेस कैन बी ट्रांसमिटेड अराउंड द कर्व ऑफ द अर्थ. और नंबर 4 पे हमारा आता है थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर. मेसोस्फीयर के ऊपर थर्मोस्फीयर होता है जो पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर तक जाता है. इस क्षेत्र में मेसोपॉज से ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती रहती है. वायुमंडल की यह परत जो कि आयनोस्फीयर है, रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की सतह पर परावर्तित करती है और हमें वायरलेस संचार करने में सक्षम बनाती है. इस परत के कारण रेडियो संदेश पृथ्वी के वक्र के चारों ओर प्रसारित किया जा सकता है. एंड द फिफ्थ इज एक्सोस्फीयर. द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर और द आउटर स्पेस. इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर. This region has very high temperature due to solar radiations. All these layers of atmosphere are very important to the environmental engineers because with the help of all these layers, they form the total blanket of air in the biosphere, which is the part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere in which living species lives together and interact with each other. और नंबर 5 पे हमारा आता है बहिर्मंडल. थर्मोस्फीयर के ऊपर के वायुमंडल के क्षेत्र को बहिर्मंडल या बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं. यह 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है. सौर विकिरणों के कारण इस क्षेत्र का तापमान बहुत अधिक है. वातावरण की ये सभी परतें पर्यावरण इंजीनियरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन सभी परतों की मदद से वे जीवमंडल में हवा का कुल कंबल बनाते हैं, जो स्थलमंडल, जलमंडल और वातावरण का हिस्सा है, जिसमें जीवित प्रजातियां एक साथ रहती हैं और एक दूसरे से बातचीत करती हैं. तो यह तो थी जानकारी वायुमंडल की परतों के बारे में. अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और लास्ट में बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे. थैंक यू वेरी मच.